محمد نبینا محمد نبینا بالنور آتینا من مکہ حبیبی نور. یہاں جلوہ افروز ہے. میں 4 مصروں سے ان کا استقبال کرتا ہوں کہ تیری آمد کا مژدہ جب ہوا ہم کو سناتی ہے، چمن کی ہر کلی یارو خوشی سے جھوم جاتی ہے. میرا ساتھ دیں، آپ ان کا استقبال کریں کہ تیرے آنے سے گلشن میں میرے خوشیاں بکھر آئی، خوشی سے جھوم اٹھے بھورے نئی کلیاں ابھر آئی، اور سلامی سلامی تجھ کو دینے چاندنی نیچے اتر آئی، ہر ایک بلبل کے چہرے پر خوشی دیکھو ابھر آئی. میں نہایت ہی ادب اور احترام سے گزارش گزار ہوں حضرت والا سے کہ وہ منبر نور پر جلوہ افروز ہو. آئیے ایک بار پھر استقبال کرتے ہیں کہ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، لیکن جو لوگ بڑے ہیں وہ پھر بھی بڑے رہتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، لیکن جو لوگ بڑے ہیں وہ پھر بھی بڑے رہتے ہیں. اور ایسے بزرگوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. حضرت تشریف لا چکے ہیں. جو حضرات ادھر ادھر ہیں وہ فوراً جلسے گاہ میں آ جائیں. ابھی کچھ دیر کے فوراً بعد انشاءاللہ دستار بندی کا عمل وجود میں آئے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قیمتی لمحہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں میں قید کرنے سے رہ جائے اور پھر ہمیں کہنے پر مجبور ہو جائے کہ باغبان آگ دی تھی آشیانے کو میرے، جس پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. یا پھر ہمیں یہ کہنا پڑے کہ وقت صدا دور دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. لہٰذا جو ساتھی ادھر ادھر ہیں وہ فوراً جلسے گاہ میں آ جائیں. حضرت والا کے مقدس ہاتھوں سے یہ نیک عمل وجود میں آنے والا ہے انشاءاللہ بہت جلد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جاگ جائے مسلمان سویرا ہوا، جاگ جائے مسلمان سویرا ہوا، دور ساری جہاں سے اندھیرا ہوا، سبز پتے ہوئے پھول مرجھا گئے، سوکھ جانے کے بالکل قریب آ گئے. اے میری قوم کے نامور شاعرو، اے میری قوم کے نامور شاعرو، عالموں حافظوں مفتیوں قاریوں، یہ اٹھیں وہ اٹھیں ہم اٹھیں تم اٹھو، اٹھ کے ہم سب یہ پیغام دیں قوم کو، جاگ جائے مسلمان سویرا ہوا، دور ساری جہاں سے اندھیرا ہوا. معزز حاضرین اور اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام، آپ حضرات عشاء کے بعد سے اپنے جلسے کو سماعت کر رہے ہیں. مدرسہ ہذا کا اور اس مکتب کا یہ ایک سالانہ جلسہ ہے جس کی خوشی میں، جس کی تقریب میں ہم سب جمع ہیں. رفیق محترم میرے بھائی شاعر صاحب ندیم اختر راہی ماشاءاللہ آپ حضرات سے عشاء کے بعد سے روبرو ہیں. آپ حضرات کو اپنا کلام بھی سنا رہے ہیں اور پورے مجمع میں اور اس جلسے میں ایک ماحول بنانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں.
اور آپ حضرات کو بٹھانے میں اور اس جلسے کا ماحول بنانے میں ان کا یقیناً ایک اہم کردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھائی کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آپ حضرات کو شعر و شاعری کی دنیا میں لے کر جاتے ہیں، کبھی تقریر بھی فرماتے ہیں، کبھی آپ حضرات سے گفتگو بھی فرماتے ہیں، لیکن ایک ہم ہیں کہ اپنے ان سارے جلسوں میں ان کو سنتے ہیں، ان کے اشعار سنتے ہیں، لیکن انعام سے نہیں نوازتے۔ اللہ کے بندوں، کبھی کبھی تو حوصلہ افزائی کے لیے انعام بھی دے دیا کرو۔ انعام سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ کس قدر محنت ہے ان کی اس پورے جلسے کو بنانے میں، اس جلسے کا ماحول بنانے میں۔ تقریباً کئی گھنٹے سے آپ حضرات کے روبرو ہو کر وہ اپنے اشعار بھی سنا رہے ہیں، آپ حضرات سے گفتگو بھی فرما رہے ہیں، اور حضرات علماء کرام کو یکے بعد دیگرے آپ حضرات کے سامنے بھی لا رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہماری جلسے کو قبولیت سے نوازے۔ ماشاءاللہ ہمارے اس مکتب کے اور یہ جو بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں، ان سب کی محنتوں میں اگر کسی کا کردار ہے وہ ہے قاری محمد عارض ہے نا، ماشاءاللہ۔ وہ بیچارے تقریباً کئی سال سے بچوں کو یہاں پڑھا رہے ہیں، اپنے ایک مکتب میں ایک گھر پر بچوں پر محنت کر رہے ہیں، اور پچھلے سال بھی کئی حافظ قرآن انہوں نے بنائے، اور اس سال بھی الحمدللہ کتنے حافظ قرآن ہیں؟ 9 بچے حافظ قرآن، الحمدللہ 9 بچے حافظ قرآن ہیں۔ میرے بھائیوں، بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے مکاتب میں بھی اتنی محنت نہیں ہو پا رہی ہے جتنا یہ ہمارا بچہ، آپ کا بچہ اور آپ کا یہ طالب علم، آپ کا یہ بیٹا الحمدللہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ اس کی محنتوں میں مزید استقامت اور مضبوطی پیدا فرمائے۔ ہمارا کام ہے حوصلہ افزائی کا، ہمارا کام ہے میرے بھائیوں ان کی محنتوں کو سراہنے کا۔ ہمیں یہ کام کرنا ہے، انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اور یہ محنت کرتے رہیں گے، ہر سال ہمیں حافظ قرآن ملتے رہیں گے۔ بہرحال جلسہ جو ہے اب دعا کی طرف چل رہا ہے، جلسہ بالکل اختتام کی طرف آ رہا ہے۔ بچوں کی دستار فضیلت کا عمل بھی عنقریب سامنے آئے گا۔ آپ حضرات جلسے کو سماعت بھی کریں گے، جلسے کو سنیں گے، اور الحمدللہ دستار فضیلت بھی بچوں کی جائے گی۔ اور اس کے کیسے ہو رہا ہے سامنے سب لگا اے لڑکی غلط اردو مت رہا چپ۔ یہ بچیاں جو ہے نا ماشاءاللہ ساری تندرست ہیں، یہ صحت مند ہیں ساری بچی یہاں کی ماشاءاللہ۔ یہ بچے سارے تندرست ہیں، صحت مند ہیں، سن بھی رہے ہیں اور شور و شغب بھی کر رہے ہیں، کود بھی رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، اور کچھ ناشتہ پانی بھی ان کا چل رہا ہے۔ حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ جب بچوں پر تنبیہ زیادہ کی جاتی تو فرمایا کرتے تھے کہ بھئی بچوں پر تنبیہ زیادہ نہ کرو، یہ سارے بچے تندرست ہیں، صحت مند ہیں۔ بچے جو تندرست ہوتے ہیں نا وہی شور مچاتے ہیں، کودتے ہیں۔ دیکھو جو بچہ گھر میں خاموش بیٹھ جاتا ہے نا تو وہ سمجھو بیمار ہو جاتا ہے۔ جو بچہ گھر میں خاموش ہے سب یہ سمجھتے ہیں گھر والے کہ یہ بیمار ہو گیا ہے، بات نہیں کر رہا ہے۔ سب کو فکر لاحق ہوتی ہے کہ بچے کو کوئی دوائی دی جائے، بچے کو ڈاکٹر کو دکھایا جائے۔ بہرحال بچے جو ہیں دیکھو بات یہ کرتے رہیں گے، بھئی بچوں کی بات ہو رہی ہے اب تو سنو، بچے جو ہیں وہ متوجہ رہیں۔ ماشاءاللہ یہ سب بچوں کی برکت سے جلسہ منعقد کیا گیا۔ میرے بھائیو اگر مدرسے میں بچے نہ ہوں تو بتاؤ کس کو پڑھایا جائے؟ بچوں کی برکت سے، بچوں کی محنتوں سے میرے بھائیو جلسے منعقد کیے جاتے ہیں، اور ان مدرسوں کے جلسوں کو زینت ملتی ہے ہمارے ان بچوں سے۔ اللہ ان بچوں کی عمروں میں، ان کے پڑھنے پڑھانے میں برکت عطا فرمائے۔ بہرحال یہ مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے جس کی خوشی میں، جس کی تقریب میں ہم سب جمع ہیں۔ مدرسے کے یوں تو ہزاروں احسانات ہیں جنہیں ہم محسوس کریں یا نہ کریں، لیکن یہ بھی مدرسے کا بہت بڑا احسان ہے کہ سال بھر میں ہمیں اس طرح سے بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، علماء کی زیارت میسر آتی ہے، اپنے ان بچوں کا کلام سننے کو ملتا ہے، علماء کی آمد و رفت مدرسے کی برکت سے، جلسے کی برکت سے ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے اس مدرسے میں، جلسے میں بہت سارے علماء تشریف لاتے ہیں، اور ہم سب ان کی زیارت بھی کرتے ہیں۔
ان سے ملاقات بھی فرماتے ہیں اور ان کے خطابات ان کے بیانات کو بھی سنتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف مدرسے کی برکت ہے۔ مدرسے کے علاوہ کوئی بھی پروگرام کوئی بھی تقریب کی جائے اور اتنے سارے علماء کو دعوت دی جائے اور اتنے سارے علماء کو بلایا جائے تو بہت مشکل ہو جائے گا اتنے سارے علماء کا جمع ہونا، لیکن مدرسے کی برکت سے، بچوں کی برکت سے، قرآن کریم کی برکت سے میرے بھائیو یہ مجلسیں میسر آتی ہیں۔ یہ قرآن کریم اللہ کی عظیم کتاب ہے، اللہ کا وہ کلام ہے جس کو ہمارے بچے مدرسوں میں رہ کر پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک بچوں پر محنت کی جاتی ہے، بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ بچے اس عظیم دولت سے، اس عظیم امانت سے میرے بھائیو اپنے سینوں کو منور کرتے ہیں۔ ان کے قلوب میں، ان کے ذہنوں میں، ان کے دل و دماغ میں قرآن کریم کی آیتیں اساتذہ کی محنتوں کی برکت سے الحمدللہ میرے بھائیو محفوظ ہوتی ہیں۔ اور آج ہمارے وہ بچے جنہوں نے سال بھر محنت کی، سال بھر اس قرآن کو پڑھا، سال بھر اس قرآن کی تلاوت کی، آج وہی بچے حافظ قرآن بن کر ہمارے سامنے موجود ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ، اور میرے بھائیو قابل احترام ہیں وہ تمام باپ اور وہ تمام ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو مدرسے میں چھوڑا، اساتذہ کی نظر کیا، مدرسے میں بھیج کر انہوں نے انہیں قرآن پڑھانے کے لیے اور قرآن سکھانے کے لیے اور قرآن سیکھنے کے لیے مدرسوں میں چھوڑا، اساتذہ کی صحبتوں میں چھوڑا، مدرسوں میں چھوڑا۔ وہ تمام حضرات، وہ تمام والدین خوش نصیب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کی اور اس قرآن کی تلاوت سے میرے بھائیوں روبرو اور قرآن کی تلاوت کرنے کا شوق اور ذوق اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی پیدا فرمائے۔ بہرحال جو بچے قرآن پڑھتے ہیں، مدرسوں میں رہ کر قرآن سیکھتے ہیں، اسی قرآن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان کے مقام کو بلند فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا احترام بھی اس کو بھی بلند فرماتا ہے اور ان کی نسبتوں کو بھی بلند کرتا ہے۔ یہ قرآن کریم اللہ کی وہ عظیم کتاب ہے، اللہ کا وہ محترم کلام ہے۔ جس نے بھی قرآن کو پڑھا، جس نے بھی قرآن کو سیکھا، جس کے سینے میں بھی قرآن کی آیت آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس کلام کی برکت سے، اپنے اس مبارک کلام کی برکت سے اس کے مقام کو بھی بلند کر دیا اور اس کی نسبتوں کو بھی بلند کر دیا۔ میرے بھائیو ہمارے وہ بچے جو قرآن کریم پڑھ کر، قرآن کریم سیکھ کر ہمارے درمیان میں رہتے ہیں، وہ ہمارے بچے جو قرآن سیکھ کر حافظ قرآن بن کر عالم بنتے ہیں اور پھر یہی حافظ قرآن اور یہی عالم دین ہماری مسجدوں میں نمازیں پڑھاتے ہیں، ہمیں مسئلے مسائل بتاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں اور بہت سارا علم اور بہت سارا دین ہمیں سکھا کر میرے بھائیوں اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے، اس کلام کے ذریعے اللہ لوگوں کو بلند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلندی عطا فرماتا ہے، اللہ ان کے مراتب کو بلند کرتا ہے، اللہ انہیں بلند مقامات سے نوازتا ہے۔ یاد رکھو جس نے بھی قرآن پڑھا، جس نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھا، جس نے بھی اللہ کے اس کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اللہ نے اس کلام کی برکت سے، اللہ نے اس عظیم اور مبارک کلام کی برکت سے اللہ نے اس کے مقام اور مرتبے کو بھی بڑھا دیا۔ ایک وہ طالب علم، ایک وہ بچہ ہے جو قرآن سے محروم ہے، اس کا اتنا بڑا مقام نہیں جتنا بڑا مقام اور جتنا بڑا احترام اور جتنی بڑی نسبت اس کی ہے جس کے سینے میں قرآن ہے، جس کے سینے میں اللہ اس کے رسول کی باتیں ہیں، اللہ اس کے رسول کا کلام جس کے سینے میں محفوظ ہے، اس کا مقام اور مرتبہ یقیناً بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، جو لوگ قرآن سیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نوازتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑی نسبتوں کا حامل بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بلند مقامات عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ جس نے بھی اس کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھا کر اس کا مقام بلند کر دیا۔ ایک وہ میرے بھائیوں بہت سارے لوگ وہ ہیں جو قرآن سے دور ہیں، اس امانت سے دور ہیں، ان کے سینوں میں قرآن نہیں، اور ایک وہ بچے ہیں دنیا میں رہنے والے وہ لوگ ہیں جن کے سینوں میں قرآن کی آیتیں محفوظ ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ یقیناً بلند ہے۔ اور یہ صرف اور صرف برکت ہے آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس قرآن پاک کی برکت ہے۔ جو بھی قرآن کے قریب آیا، جس نے بھی قرآن کو میرے بھائیوں مضبوطی سے پکڑا، جو بھی قرآن کے قریب ہوا، جس نے قرآن سے قربت اختیار کی، جس نے اپنی نسبت کو قرآن
कुरान से जोड़ा, अल्लाह ने उसी को बुलंद फरमा दिया। एक वो कपड़ा है जो यहाँ शामियानों में लगाया गया, एक वो कपड़ा है जो हमारे लिबास में लगाया जाता है, एक वो कपड़ा है जिसकी हम टोपी बनाते हैं, उस टोपी में लगने वाला कपड़े का मकाम उस कपड़े से बेहतर है जो कपड़ा हमारे पैजामे में लगाया गया, जो हमारे इस कुर्ते में लगाया गया, उसी कपड़े से बुलंद मकाम उस कपड़े का है जो हमारी इस टोपी में लगाया जाता है। इसी तरह मेरे भाइयों वो कपड़ा जो कुरान करीम के जुज़दान में लगाया गया, जो कुरान करीम से जिसको निस्बत मिली, जो कुरान करीम से करीब हुआ, जो कुरान करीम से बस्ता जुड़ गया और कुरान करीम से जो कपड़ा जुड़ा, अल्लाह ने उस कपड़े का मकाम भी बुलंद कर दिया। कोई ईमान वाला, कोई कलमा पढ़ने वाला दुनिया में ऐसा नहीं जो जुज़दान को कहीं पड़ा हुआ देखे और कहीं उसको डाला हुआ और उसको पड़ा हुआ देख ले। तो मेरे भाइयों कोई ईमान वाला ऐसा नहीं है जो उसको प्यार और मोहब्बत से न उठाए और एहतराम से उसको उठाकर और उसको बोसा देकर कहीं अच्छी जगह पर न रखे। ऐसा कोई ईमान वाला मेरे भाई दुनिया में नहीं है। आप जानते हैं इस कपड़े का मकाम क्यों बढ़ा? इस कपड़े का मकाम इसलिए बढ़ा है कि इसने इसकी निस्बत और इसको निस्बत और कुर्बत हासिल हुई है कुरान से। मेरे भाइयों एक वो लकड़ी है जो दरवाजों में लगाई जा रही है, एक वो लकड़ी है जो मेरे भाइयों दरवाजों में विंडो में लगाई जा रही है, और एक लकड़ी वो है जिसकी रहल बनाकर उसके ऊपर कुरान करीम रखा जाता है। एक वो तिपाई है, तिपाई में भी वो लकड़ी है जिसके ऊपर कुरान रखा जाता है। तिपाई का जो मकाम है और उस मेरे भाई रहल का जो मकाम है वो उस लकड़ी का नहीं जो हमारे दरवाजों में लगाई गई, जो हमारी विंडो में लगाई गई, उसका वो मकाम और मर्तबा नहीं जो उस लकड़ी का है जिसके ऊपर कुरान रखा जाता है। इसलिए मेरे भाइयों ये कुरान करीम से जुड़े हैं, इनके सीने में कुरान आया है। मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला ने आकाए नामदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से इन कुरान करीम पढ़ने वालों को बुलंद किया, इनके मकामात को अरफा और मेरे भाइयों दरजात को अल्लाह ने इनके बुलंद किया और दुनिया में भी बुलंद किया, और इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन भी ये बुलंद तरीन मकामात पर होंगे। अल्लाह इन कुरान करीम के पढ़ने वालों से, अल्लाह इन हुफ़ाज़ से फरमाएंगे कि तुम कुरान करीम की तिलावत करो, कुरान को पढ़ते जाओ, और जहां भी कुरान करीम की आखिरी आयत आएगी वहीं जन्नत में तुम्हारा मकाम होगा। इन कुरान करीम पढ़ने वालों को अल्लाह ने दुनिया में भी नवाजा, अल्लाह ने इनको दरजात जो है दुनिया में भी बुलंद दिए, और इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन भी ये बुलंद मकामात पर होंगे, बुलंद दरजात पर होंगे। इनका दर्जा वहां भी बुलंद है और इस दुनिया में भी बुलंद है। ये कुरान करीम पढ़ने वाले, ये हाफिज़ कुरान, ये कुरान करीम सीखने वाले, ये कुरान नाज़रा पढ़ने वाले, ये छोटे छोटे मुख्तसर से बच्चे जो कुरान सीख रहे हैं, जिनके सीनों में कुरान की आयतें अल्लाह महफूज फरमा रहा है, याद रखो ये सबसे बेहतरीन जमात और इस रूए जमीन पर सबसे ऊंची जमात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं बच्चों के मुताल्लिक और इन कुरान सीखने सिखाने के वाले के मुताल्लिक फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर जमात अगर कोई इस रूए जमीन पर है, अगर कोई तुम में सबसे अच्छा है और सबसे बेहतर है, और कोई जमात इस रूए जमीन पर अगर कोई सबसे अच्छी रहती है तो वो कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों की है। आज हमारे जहनों में, आज हमारे दिल दिमाग में इन कुरान करीम पढ़ने वालों का एहतराम नहीं, हम बेकदरी कर रहे हैं, उलमा की बेकदरी कर रहे हैं, अपने अइम्मा की बेकदरी कर रहे हैं, इन पढ़ने पढ़ाने वालों की बेकदरी की जा रही है। आज हमारे भाइयों, हमारे में से कुछ लोग जो इन पढ़ने पढ़ाने वालों के खिलाफ जुबान दराजी कर रहे हैं, जो इन पढ़ने पढ़ाने वालों के खिलाफ, इन कुरान सुनने सुनाने वालों के खिलाफ अपनी बैठकों में बैठकर और अपने दुकानों पर बैठकर गलत बयानबाजी और जुबान दराजी करते हैं, वो याद रखें इस रूए जमीन पर सबसे बेहतरीन जमात इस रूए जमीन पर अगर कोई है तो इन कुरान पढ़ने वालों की। अल्लाह के नबी का फैसला है, और जो अल्लाह के नबी को फैसले को नहीं मानता, अल्लाह की बातों को नहीं मानता, अल्लाह के रसूल के फैसले को तस्लीम नहीं करता, मेरे भाइयों दुनिया में भी नाकाम होगा, दुनिया में भी रुसवा होगा, दुनिया में भी जलील और खार होगा, और आखिरत में भी रुसवाई उसका मुकद्दर बनेगी। इसलिए मेरे भाइयों ये कुरान करीम सिखाने वाले, वो चाहे घर पर पढ़ाए, चाहे वो बैठक में बैठकर पढ़ाए, चाहे वो मदरसे में बैठकर पढ़ाए, देखना यह है कि पढ़ा क्या जा रहा है, पढ़ाया क्या जा रहा है। हमें देखना यह है, हमें ये नहीं देखना है कि पढ़ाने वाला कौन है, हमें तो ये देखना है किसकी बात की जा रही है, किसका कलाम पढ़ाया जा रहा है, किसका कलाम सुनाया और सुना जा रहा है, किसकी बात को सिखाया जा रहा है, किसके कुरान को किसकी बात को बताया जा रहा है। हमें देखना यह है, हमें ये नहीं देखना कि ये मदरसे में बैठकर पढ़ाता है, ये घर पर बैठकर पढ़ाता है, ये बैठक में बैठकर पढ़ा रहा है, ये रास्ते में बैठकर कहीं एहतराम से बैठकर कुरान करीम सिखा रहा है। हमें ये नहीं देखना है, हमें तो ये देखना है कि बात किसकी की जा रही है, कलाम किसका पढ़ा जा रहा है, कलाम किसका सुनाया जा रहा है, किस बात को सिखाने के लिए, किस कलाम को सिखाने के लिए ये मेहनत कर रहा है। हमें देखना यह है। आप
आपका ये बेटा, आपका ये बच्चा कुरान पढ़ाता है, कुरान सिखाता है, और इसकी मेहनत जो है बड़ी अजीब व गरीब है। अल्लाह ने मेहनत का अमल का अजीब व गरीब इसको दिया है। ये बच्चा सब रोज मेहनत करके और दिन रात मेहनत में लगा रहता है, और इसकी मेहनत के सिले में और इसके मेहनत के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इस बस्ती में भी और दूर दराज से आने वाले तलबाए किराम यकीनन कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान सीख रहे हैं, हाफिज कुरान बन रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इसके पढ़ाने में बरकत अता फरमाए और पढ़ने में भी बरकत अता फरमाए। और जो हाफिज कुरान हर साल तैयार हो रहे हैं, जो कुरान के हाफिज हर साल पैदा हो रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम हजरात हाफिज को अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे, उम्रों में बरकत अता फरमाए। बहरहाल कुरान करीम की एक आयत इस वक्त में पढ़ी थी, उसके ताल्लुक से भी दो तीन बातें अर्ज करने का इरादा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इस वक्त में पढ़ी गई, उसके ताल्लुक से बात की जा रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके जहन में, जिसके दिल दिमाग में जो कुरान से जुड़ा, जिसने कुरान से कुर्बत इख्तियार की, जिसने अल्लाह के कलाम से कुर्बत इख्तियार की, जो अल्लाह के कलाम के करीब आ गया, जो अल्लाह के कलाम के नजदीक आ गया, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में उसके मकाम को बुलंद फरमा देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबि अक़वामा, अल्लाह तबारक व तआला इस किताब के जरिए कौमों को बुलंद करता है। अल्लाह तबारक व तआला इस कलाम के जरिए, इस कुरान के जरिए लोगों को बुलंदी अता फरमाता है। जिसने भी कुरान पढ़ा है, जो भी कुरान से करीब हुआ है, अल्लाह ने उसको अज़मतों से नवाजा, अल्लाह ने उनको बड़ा एहतराम दिया। मेरे भाइयों, कितने बड़े मकाम से नवाजा कुरान करीम खुद बयान करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद हदीस है, आपने फरमाया, इस रूए जमीन पर रहने वाले जो कुरान की तलाश में रहते हैं, जो अल्लाह का कुरान सीखने के लिए, अल्लाह की किताब सीखने के लिए, इस इल्म को हासिल करने के लिए शब रोज मेहनत में लगे रहते हैं, वो दुनिया में इल्म की तलाश में है, वो मेहनत कर रहे हैं, वो कुरान सीखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कुरान के करीब आ रहे हैं, इस इल्म की जुस्तजू में, इस इल्म की तलाश में अपने वक्त को सर्फ कर रहे हैं, और जन्नत उनको तलाश कर रही है, जन्नत उनको तलब कर रही है। मन काना फी तलबिल इल्म अल जन्नत फी तलबी, जो शख्स इल्म की तलाश में रहेगा, जो इल्म की तलाश में रहेगा, जो इल्म की जुस्तजू में रहेगा, जो कुरान की तलाश में और कुरान सीखने के लिए कोशिश करेगा, सफर हजर में ये कोशिश उसकी रहेगी कि कुरान पढ़ लूं, इस इल्म को हासिल कर लूं, इस इल्म को मैं तलाश कर लूं, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत अता फरमाएंगे। जन्नत उसकी तलाश में रहेगी, वो कुरान की तलाश में है, वो कुरान हासिल करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए इल्म की जुस्तजू में लगा हुआ है, और मेरे भाई जन्नत उसकी तलाश कर रही है। कौन नहीं चाहता है ईमान वाला कि जन्नत उसको मिल जाए, जन्नत उसकी तलाश करे। बस मेरे भाइयों, हम सब चाहते हैं कि जन्नत हमें मिले, वो नेमत मैसर आ जाए, अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत हमारा मुकद्दर बन जाए। तो समझो फिर आप हजरात के कुरान से जुड़ना पड़ेगा, कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करना होगा, कुरान को सीखना होगा, कुरान को पढ़ना होगा। आज मेरे भाइयों कुरान पढ़ा जाता है, कुरान की तिलावतें हो रही हैं, हमारा हाल ये है कि शोर व शगब है, बेहुदा बातें हैं, बेहुदा काम है, बेअदबी किए जा रहे हैं। अल्लाह की वो अजीम किताब है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस किताब की तिलावत होती और इस कुरान को पढ़ा जाता, इसका असर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर भी होता था। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि कुरान पढ़कर सुनाओ, कुरान की तिलावत करो। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपके ऊपर कुरान उतारा है, अल्लाह ने आपके ऊपर कुरान भेजा है। हजरत जिब्रील अमीन कुरान को लेकर आपकी ज़ात अक़दस पर आए हैं, कुरान की आयतें आपकी ज़ात अक़दस पर उतरी है। आपसे बढ़िया और आपसे अच्छा कौन पढ़ सकता है? आप तो मेरे भाइयों कुरान को सबसे बढ़िया सुनाने वाले हैं और आप कुरान को सबसे बढ़िया पढ़ने वाले हैं। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपसे बढ़िया कुरान कौन पढ़ सकता है? आप खुद पढ़ें, आप तिलावत करें। लेकिन अल्लाह के नबी का हुक्म था, आपने फरमाया इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान पढ़कर सुनाओ, कुरान की तिलावत करो। हुक्म था अल्लाह के रसूल का, कुरान की तिलावत करना शुरू कर दिया। कुरान पढ़ते जा रहे थे, कुरान की तिलावत की जा रही थी, और थोड़ी देर के बाद जब आंख खोली और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नजर डाली तो देखते क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी थे। आपकी हालत तब्दील थी, आपकी हालत मुतगय्यर हो चुकी थी, आपकी तब्दील हालत हो चुकी थी और कैफियत
आप की तब्दील हो गई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये था, जब कुरान पढ़ा जाता, कुरान की तिलावत की जाती तो आपकी तबीयत पर, आपकी ज़ात अक़दस पर इसका असर होता था। और आज हमारा हाल ये है, कहीं भी कुरान पढ़ा जाए, खुद कुरान भी अगर सुनते हैं, कुरान की तिलावत सामने होती है तो तबीयतों में मेरे भाइयों असर पैदा नहीं होता, तबीयतें मुअस्सिर नहीं होती है, तबीयतों में तासीर पैदा नहीं होती है। हाल मेरे भाइयों ये नहीं रहना चाहिए। हमारा हाल तो ये हो कि जब भी अल्लाह का कलाम हो, अल्लाह का कलाम पढ़ाया जाए, अल्लाह का कलाम सुना जाए और उसकी तिलावत सामने आए, हमारी हालतें भी तब्दील हों, हमारी हालतें और हमारी कैफियत भी तब्दील होनी चाहिए। कौन नहीं जानता, तारीख में वाक़यात भरे पड़े हैं। हजरत जाफर ने एक मरतबा नज्जाशी के दरबार में कुरान करीम की आयत पढ़ी थी, कुरान करीम की तिलावत की थी। कैफियत क्या थी मेरे भाइयों, कौन नहीं जानता है। तारीख में वाक़यात मज़कूर हैं। हजरत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का वो वाक़या कौन नहीं जानता है। उनके ईमान लाने का वाक़या मशहूर है। जब एक मरतबा हजरत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु अपना एक इरादा लेकर और अपना एक इरादा लेकर, नापाक इरादा लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने के लिए और अपने गलत इरादा लेकर निकले थे। रास्ते में एक सहाबी से मुलाकात हुई। उन सहाबी से उन्होंने मालूम किया, उन सहाबी ने उनसे मालूम किया कहाँ जा रहे हो, तो यूँ कहा कि आज तो मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने के लिए अपना एक गलत इरादा लेकर निकला हो। तो उन सहाबी ने अर्ज किया कि सही है, तुम गलत इरादा लेकर निकले हो, तुम अपना गलत इरादा लेकर यहाँ से निकले हो, अपने घर की तो खबर लो। तुम्हारी बहन फातिमा और तुम्हारे बहनोई वो दोनों अल्लाह के रसूल पर कुर्बान हो चुके हैं, वो दोनों अल्लाह के रसूल पर ईमान ला चुके हैं। जब उन्होंने कुरान को सुना और कुरान की तिलावत को सुना और जब उन्होंने कुरान को पढ़कर देखा तो उनकी हालतें भी तब्दील हो गई। अल्लाह के रसूल पर वो ईमान ले आए हैं। हजरत उमर इब्न ख़त्ताब वो वहां से निकले और उनके घर पर पहुंचे और उनकी पिटाई करना शुरू कर दिया और उनके ऊपर तो बजा रहे थे और उनको तकलीफ पहुंचा रहे थे और उनकी पिटाई कर रहे थे। जब थक कर बैठ गए तो ख्याल आया कि भाई कम से कम उस कलाम को देखा तो जाए, वो कौन सा कलाम है आखिर जिसको सुनकर हालतें तब्दील हो रही हैं। मेरे बहन और बहनोई भी ईमान ला चुके हैं और हर एक शख्स जो भी कुरान सुन रहा है, जो भी तिलावत को सुन रहा है, जो भी कुरान को पढ़ रहा है, वही उसी की हालत तब्दील हो रही है। तो उसके बाद उनकी बहन ने उनसे कहा कि गुस्ल करो। गुस्ल कर कर बैठ गए और कुरान करीम की कुछ आयतें, कुछ वर्क उनके सामने रखे। उसमें ताहा की आयतें मौजूद थी। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला। जब ये कुरान करीम की आयत पढ़ी, अपना वो गलत इरादा, अपना वो नापाक इरादा जो घर से लेकर निकले थे, कुरान करीम की जब आयतों को पढ़ा और कुरान करीम की आयतों को जब तिलावत किया, हालत पलट गई, हालत तब्दील हो गई और उनकी काया पलट गई। वो नापाक इरादा लेकर निकले थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने के लिए निकले थे, लेकिन हालत ये बनी कुरान को सुनकर, कुरान करीम को पढ़कर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ फरमाया। उन सहाबी से अर्ज किया कि मुझे भी अल्लाह के नबी की खिदमत में लेकर चलो, मैं भी देखना चाहता हूँ, मैं भी उसको उस रसूल पर ईमान लाना चाहता हूँ, मैं भी इस कुरान को पढ़ना चाहता हूँ। और जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में अपने सर को रख दिया और ईमान ले आए। हजरत सहाबा का हाल ये था मेरे भाई, जब वो कुरान को सुनते और कुरान की तिलावत उनके सामने होती और कुरान को वो पढ़ते तो उनकी हालतें तब्दील हो जाया करती थी। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी कुरान से ऐसा ही इश्क पैदा फरमा दे। कुरान से इश्क ज़रूरी है, कुरान से मोहब्बत ज़रूरी है। हजरत असैद बिन हज़ीर रज़ी अल्लाह अन्हु के मुताल्लिक़ आता है, बुखारी शरीफ में वाक़या मौजूद है। एक मरतबा वो रात में कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे, सूरह बकरा की तिलावत कर रहे थे, सूरह बकरा पढ़ रहे थे, नमाज में मशरूफ थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे और बेचैन हो जाते। हालत थोड़ा सा तब्दील होती तो बराबर में घोड़ा बंधा हुआ था, वो बिदकने लगता, फिर थोड़ा सा कमजोर आवाज में आवाज को थोड़ा सा नीची कर देते और आहिस्ता आहिस्ता तिलावत फरमाते, फिर थोड़ा सा बेचैन होते और हालत तब्दील होती, फिर जोर जोर से कुरान पढ़ना शुरू कर देते। इसी तरह होता रहा। फिर उनको ख्याल आया कि बराबर में यहया उनका बेटा लेटा हुआ है जो बहुत छोटा सा है और बराबर में उनका घोड़ा बंधा हुआ है। जब कुरान करीम को जोर जोर से पढ़ते तो घोड़ा भी बिदकने लगता और आप भी कुरान करीम की तिलावत जोर जोर से फरमाने लगते, वो घोड़ा भी बिदकने लगता। आपको ये ख्याल आया कहीं ऐसा ना हो कि ये घोड़ा जो मेरे बराबर में बंधा हुआ है मेरे बच्चे को तकलीफ न पहुंचा दे, इसको परेशान न कर दे और तकलीफ न पहुंचा दे। बस फिर उसके बाद उन्होंने कुरान करीम की आयत को, सूरत को
मुकम्मल किया। मुकम्मल करने के बाद दरबार इलाही में हाथ उठाए और जब ऊपर आसमान पर नजर डाली तो देखते क्या है कि एक अब्र का साया है, एक बादल छाया हुआ है और उसमें से सितारों की मानिंद रोशनियां नजर आ रही है। उसके बाद ये सारा माजरा देखकर, ये सारी कैफियत को देखकर सुबह को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ लाए, अपना वो सारा वाक़या बयान फरमाया, वो सारी तफसील बयान फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम कुरान की तिलावत कर रहे थे, अल्लाह की तरफ से सकीना नाजिल हो रहा था, अल्लाह के फरिश्ते कुरान सुनने के लिए, अल्लाह के फरिश्ते तिलावत सुनने के लिए आसमानों से उतर गए थे और तुम्हें जो रोशनी नजर आ रही थी, तुम्हें जो सितारों की तरह रोशनी दिखाई दे रही थी, वो अल्लाह के फरिश्ते थे। अगर तुम सुबह तक कुरान पढ़ते रहते, अगर सुबह तक तुम तिलावत करते रहते, आज यहाँ के लोग फरिश्तों को अपनी आंखों से देख लेते। वो अल्लाह की नूरानी मखलूक थी जो कुरान सुनने के बाद, कुरान करीम की तिलावत होने के बाद आसमानों से उतर कर कुरान करीम सुनने के लिए आसमानों से उतर गए थे, कुरान को सुन रहे थे, कुरान की तिलावत मेरे भाई हो रही थी। हमारा हाल क्या है कि कुरान पढ़ा जाता है, कुरान करीम की तिलावत होती रहती है, हम बातों में मसरूफ हैं, बातें कर रहे हैं और इधर उधर कामों में लगे हुए हैं और बेअदबी किए जा रहे हैं। नहीं मेरे भाइयों, ये अल्लाह की अजीम नेमत है, अल्लाह का वो कलाम है कि जब भी इसको पढ़ा जाए, जब भी इसकी तिलावत को हम सुने तो मेरे भाई गौर और फिक्र के साथ, तवज्जो के साथ, इंतहाई खामोशी के साथ, यकसुई के साथ, अदब और एहतराम के साथ कुरान करीम को सुनना चाहिए। कुरान करीम यकीनन अल्लाह की अजीम अमानत है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कलाम पाक को, अल्लाह ने अपने इस कुरान को, अल्लाह ने अपने इस कलाम को आक़ाए नामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा और उतारने के बाद मेरे भाइयों ये अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी हिफाजत का वादा भी खुद फरमाया। और ये छोटे छोटे बच्चे जो कुरान करीम पढ़ रहे हैं, अपने सीनों में कुरान महफूज कर रहे हैं, ये कुरान करीम के हाफिज होने के साथ साथ ये कुरान करीम की हिफाजत में लगे हुए हैं। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून। हाफिज जो है, हाफिज की जमा है हाफिजून। हाफिज कहते हैं याद करने वाले को, हिफ्ज करने वाले को। हाफिजून ये इसकी जमा है मेरे भाई, ये हाफिजून है, ये हिफ्ज करने वाले हैं, ये याद करने वाले हैं, इनके सीनों में कुरान आया है। अल्लाह इस कुरान की हिफाजत, अल्लाह तबारक व तआला अपने इस कलाम की हिफाजत हमारे इन बच्चों के जरिए, इन कुरान पढ़ने वालों के जरिए फरमा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान से इश्क पैदा फरमा दे, कुरान करीम की मोहब्बत हमारे क़ुलूब में पैदा फरमा दे। ये तो वो अजीम किताब है अल्लाह की मेरे भाइयों। ईमान वालों के साथ साथ ईमान वालों की हालतें तो बदलती थी, हज़रात सहाबा की हालत मुतगय्यर होती थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत वो बदल जाया करती थी। और साथ साथ में गैरों का भी ये हाल था, गैरों का हाल भी ये था जब वो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से कुरान की तिलावत सुनते और कुरान की तिलावत को वो सुनते और कुरान को पढ़ता हुआ जब वो सुनते थे तो उनकी हालत भी तब्दील हो जाती। वो भी सारे कामों को छोड़कर कुरान सुनने के लिए आते और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाजों में रात को मसरूफ होते और तिलावत फरमाते थे तो गैर लोगों का हाल ये था जो आपके भी मुनकिर थे, आपके मुनकिर थे, कुरान के मुनकिर थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकिर थे। अखनस बिन शुरैह, अबू जहल, सुफियान, इनका हाल ये था, ये गैर थे, ईमान इनके अंदर नहीं था, लेकिन हालत उनकी ये थी कि रोजाना जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मसरूफ होता थे और तिलावत कुरान फरमाते तो ये लोग अपने घरों से निकलकर अपने अपने ठिकानों पर रात में बैठ जाया करते और सुबह तक तिलावत सुनते थे। क्या चीज थी कि इनको सारे काम को छुड़वाकर और सारी जरूरतों को और सारी मसरूफियतों को इनकी छुड़वाकर इनको कुरान सुनने पर मजबूर कर रही थी। तिलावत कुरान के लिए इनको वहां से खींच कर ला रही थी। आखिर वो क्या चीज थी? वो कुरान का एजाज था, वो कुरान का करिश्मा था, वो कुरान की एजाज नुमाई थी कि कुरान को सुनते थे तो अपने सारे कामों को छोड़ देते थे। ये लोग रात में निकलकर अपने ठिकानों में बैठकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से जब कुरान पढ़ा जाता उसको सुबह तक सुनते थे। जब ये यहाँ से जाते तो इनके आपस में मुलाकात होती और यही सिलसिला 3 दिन तक रहा। 3 दिन तक यही सिलसिला रहा, सुबह से शुरू से लेकर सुबह तक, रात के अव्वल हिस्से से लेकर आखिर तक पूरी रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से जब कुरान पढ़ा जाता था और कुरान की तिलावत की जाती थी तो अपने अपने ठिकानों में बैठकर ये कुरान को सुना करते थे। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी कुरान से ऐसा ही इश्क और ऐसी मोहब्बत पैदा फरमा दे। बहरहाल कुरान करीम पढ़ना जरूरी है, उसकी तिलावत करना जरूरी है। कुरान सबसे बड़ा जिक्र है, कुरान से बड़ा जिक्र कुछ नहीं है। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ी चीज है। मुफस्सिरीन ने लिखा है जिक्रों में सबसे बड़ा जिक्र वो कुरान करीम की तिलावत है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम से सच्चा इश्क और सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
माशाअल्लाह